Hello viewers, this is VP Kulkarni, TGT Maths from PM Shri School, JNV Dharashiv. I am here with my new video, competency based question on the topic arithmetic progression. Let us see what kind of 21st century skills we can apply in this problem, how this problem is aligned with NAP 2020 and various competencies used while solving this question. Good morning, children. Good morning, sir. Today we will take up the question based on competency-based question, which carries 50 marks weightage in the CBSE examination. And the topic that I have chosen is arithmetic progression. Let us try to see how we can apply arithmetic progressions in our day-to-day life or day-to-day case study-based situations. The question is like this: Roshni, being a plant lover, decides to start a nursery. She got few plants in pots. She placed the pots in such a way that the number of pots in the first row is 2, second row is 5, and in the third row is 8, and so on. Based on the above information, answer the following question. I hope you understood what the question says. Question says, Roshni is a flower lover. She loves to have flowers. Because of that, what she has decided is, okay, I'll purchase some flower pots, and the way she wants to place it is, in the first row, she wants to place 2 pots, second row, she wants to place 5 pots, and in the third row, she wants to place 7, 8 pots she wants to place. Now see, when you see this, placement, it reminds you of arithmetic progression. ये क्या है? Arithmetic progression में आता है 3, यानी यहाँ पर एक्चुअली ए क्या हो गया, 2 पार्ट जो शुरू में रखा है वो तुम्हारा ये क्या हो गया, सेकंड रो में कितना हो गया, A2 कितना हो गया, थर्ड रो में कितना हो गया, 8. अब इसको हमें सॉल्व करना है इसके ऊपर. नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. अब इस इंफॉर्मेशन को हमको कॉम्पिटेंसी बेस या फिर कैसे क्या क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे हैं ये आप थोड़ा देख लीजिए. क्या पूछा है यहाँ पर, हाउ मेनी पॉट्स आर प्लेस्ड इन 7th रो, मतलब क्या पूछे आपको, A7 पूछा. तो A7 मतलब फॉर्मूला आपको लिखना है बच्चों, an is equal to a plus n minus 1 into d. तो आपको 7th रो चाहिए, तो 7th A7 is equal to a, यानी नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स इन द फर्स्ट रो कितना दिया आपको, 2 दिया है, तो ये a होगा 2, और ये n minus 1 बोले तो 7 minus 1 into d. कॉमन डिफरेंस मीन्स व्हाट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म आपका है 5 और फर्स्ट टर्म आपका है 2, यानी 5 minus 2 कितना होगा, 3. तो रो होगा, कॉमन डिफरेंस होगा आपका 3. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 plus 7 minus 1 कितना होता है, 6 into 3, यानी कितना होगा, 2 plus 18. हाउ मच इट विल बी, 20. पर 20 क्या है, पॉट्स है, तो आंसर आपको लिखना पड़ेगा 20 पॉट्स आर प्लेस्ड इन व्हाट, 7th row. Am I here? 20 pots are placed in 7th row. Did you get the answer? कितने बच्चों का आंसर आया ये? फाइन. तो इस तरह से आप देखो, डे टू डे लाइफ सिचुएशन का क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसीज में डाल रहे हैं. इफ रोशनी वांट्स टू प्लेस 100 pots in total, then total number of rows formed in the arrangement will be. pots प्लेस करने हैं, कितने प्लेस करने हैं, 100. तो 100 पॉट्स, यानी टोटल कितने पॉट्स हैं यहाँ पर, 100 पॉट्स आर देयर. दैट मींस सम, कुल मिलाकर कितने पॉट्स हैं, 100. तो व्हाट आई राइट हियर, सम Sn इज इक्वल टू हाउ मच, 100, राइट. देन द टोटल नंबर ऑफ रोज, द टोटल नंबर ऑफ रोज कितना आपको पूछा, यानी n इज इक्वल टू हाउ मच आपको पूछा. और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रोज आपको पूछा है. देखिए जैसे ये प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा, पहली बात आपको क्या करनी है कि आप यहाँ पर Sn फाइंड आउट करो. Sn फाइंड आउट करने से पहले आप 2-3 बातें यहाँ कर सकते हो. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ये
फर्स्ट टर्म कितना है? व्हाट इज द सेकंड टर्म हियर? इट इज 5। इससे हम क्या ढूंढ सकते हैं? कॉमन डिफरेंस हम ढूंढ सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? 5 minus that is equal to how much? 3. तो ये whatever you know, at least you try to put it in proper order. इसके बाद what is the formula to find out Sn? Sn is equal to what? n by 2 into what? Plus into तो 100 pots प्लेस करने के लिए Sn कितना हो गया? 100 हो गया। तो what I write here? 100 is equal to n मुझे ढूंढना है 2 into a. What is a is equal to 2. n मुझे पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस मुझे पता है कितना है? 3. तो 100 is equal to n by 2 into 2 into 2 कितना होगा बच्चों? 3 into n कितना होगा? और 3 इंटू -1 कितना होगा? -3. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 100 इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 4 - 3 इज हाउ मच? 4 - 3 इज हाउ मच? 1 प्लस 3n. ओके, 4 - 3 इज हाउ मच? 1 प्लस 3n. अब अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया so this is 2 into 100 is how much? 200 is equal to n into bracket 1 plus 3n. Okay, so this will be equal to 200 is equal to n into 1 is how much? Plus 3 into n is how much? आज इस 200 को अगर मैंने इधर भेज दिया तो क्या होगा बच्चों? 3n square plus n minus 200 is equal to how much? 0. Now you want to find out, इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू कीजिए, कितना होगा? -600. तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको गुणाकार करने पर 600 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कोई नंबर है आपको पता है? कैन वी गेट अ फैक्टर ऑफ दैट टाइप? 25, 24. वेरी नाइस। तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो 3n स्क्वायर प्लस हाउ मच? 25n माइनस 24n माइनस 200 इज इक्वल टू हाउ मच? तो इसके अंदर कॉमन क्या है देखो थोड़ा, n कॉमन आएगा तो 3n प्लस 25 और यहाँ पर माइनस अगर मैंने कॉमन लिया 8 अगर मैंने कॉमन लिया तो ये होगा 8 3 24 और ये माइनस माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 8 25 200. अगेन कॉमन फैक्टर क्या है? 3n प्लस और ये है n माइनस. तो अभी देखो यहाँ पर 3n प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट है? तो आप यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू -25 बाय 3 और n इज इक्वल टू हाउ मच? +8. क्या नंबर ऑफ रोज पॉजिटिव हो सकते हैं? Yes. नंबर ऑफ रोज पॉजिटिव हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं. तो कैन नॉट बी व्हाट? नेगेटिव. इसलिए डिस्कार्डिंग n is equal to -25 by 3. So therefore आंसर क्या लिखोगे? तुम्हारा कंक्लूडिंग आंसर भी वहां लिखना जरूरी है. तो कंक्लूडिंग आंसर इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ रोज इज हाउ मच? टोटल नंबर ऑफ रोज इज हाउ मच? 8 रोज. तो ये सिस्टमैटिक आंसर है तुम्हारा लिखने का. तो दिया क्या था यहाँ पर? इस पॉट को अरेंज करके चले जाओगे तो 100 पॉट्स अगर उसको रखने हैं टोटल तो कितने रोज में वो रखेगी? तो कितने रोज में रखेगी वो? 8 रोज. ओके, हाउ मेनी पॉट्स आर प्लेस्ड
द लास्ट रो। अब भी हमने निकाला था कि कितने रोज है वहां पर, कितने रोज से अभी निकाला था हमने, 8 रोज है टोटल। तो 8 रोज है, यानी आपको पूछा है A8, आपको पूछा है A8 इज इक्वल टू हाउ मच। तो A8 अगर आपको चाहिए तो A प्लस हाउ मच 70। तो A8 आपको चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज हमने पिछले इसमें निकाला था। आपने निकाला कि पिछले इसमें हमने क्या किया था, n इज इक्वल टू 8 आया था हमारा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए लास्ट रो में कितना पॉट वो रखेगी, तो लास्ट रो में कितना पॉट रखेगी वो A8 मींस A कितना है यहाँ पर 2। अभी हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था, कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 में से 2 चला गया, कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया 2 प्लस 21, कितना होगा बच्चों यहाँ पर। So 23 pots are placed in what? Last row. 23 pots are placed in last row. Don't simply write 23. What are those 23? 23 वो क्या है? फूल के गमले हैं, flower pots are there. So what is the question? How many pots are placed in the last row? Since there are only 8 rows, so we have to find out A8. A8 हमको find out करना है। Am I clear? Am I clear? If Roshni has sufficient space for 12 rows, how many total number of pots are placed in the same arrangement? अगर रोशनी के पास 12 rows के लिए प्रावधान है, अगर रोशनी के if she has space for how many rows, 12 rows, then how many total number of pots are placed within the same arrangement? पहली बार हमने कितना देखा था, 8 देखा था जब pots कितने थे 100 थे। अब उसके पास कितना स्पेस है 12 रोज वो रख सकती है, यानी n is equal to how much 12, A is equal to how much 2, A is equal to 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। और हमारे पास अभी टोटल मांगा है, टोटल मांगा है, याद रखो टोटल का मतलब होता है जस्ट 12 रोज रखना है ना उसको। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो S12 is equal to 12 by 2 into a कितना होगा बच्चों, n कितना होगा 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों, अभी देखा था हमने कितना है, d is 3। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, दिस इज हाउ मच 6, और ये होगा 4 प्लस हाउ मच 4 प्लस हाउ मच 33। So this is equal to 6 into 37। 6 into 37 कितना होता है बच्चों, 6 7 जा 42, 6 3 जा 18 प्लस 2 कितना होता है 222 फ्लावर पॉट्स या पॉट्स शी कैन प्लेस। अगर उसके पास इतनी जगह होती है, इतनी जगह होती है कि 12 रोज वो रख सकती है। पहली बार उसने कितना रो रखा, केवल 8 रखा। अब की बार उसने क्या बोलता है कि अगर मैं इसमें अगर मैं रख सकती हूँ तो कितने चाहिए, टोटल कितने टोटल। या तो आप अलग से इसको सॉल्व कर सकते हो कि S12 is equal to n by 2 into a plus an भी आप कर सकते हो। अगर a plus an करना है तो आपको 8 वर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो ये डबल काम करने से अच्छा है एक ही फॉर्मूले के अंदर आप इसको सॉल्व करो। Am I clear? The difference in the number of pots placed in the fourth and the second row. The difference of the number of pots placed in the fourth and the second row. यानी A4 minus A2, और A4 का मतलब होता है A plus 3D minus A2, यानी क्या होगा A plus D। तो इसको अगर करेंगे आप तो A plus 3D माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, और फिर माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, तो ये होगा A और A कैंसिल होगा, तो 3D में से 1D चला गया, कितना होगा बच्चों
और डी कितना है हमारे पास, डी है 3, तो कितना होगा 6 फॉर। In this way, we used all the 21st century skills like critical thinking, problem solving, mathematical literacy, and as well as analytical thinking while solving this competency based question.